Welcome to MT Learning, friends, students, and all the scholars. Today we are going to discuss the classical liberalism. Liberalism we have discussed in our earlier video. There we have discussed the origin and development of the liberalism. Those students who associate with our learnings, UPSC, NET JRF and DSSB KVS examination in the further period, I request to all those, please like and share our video and channel. So let's start today's topic, classical liberalism. My dear student, let's start the classical liberalism. So as we have discussed in our previous video, the liberalism has two major parts. First is the classical liberalism, second is a modern liberalism. So in the classical liberalism, today we have discussed some major characteristics of a classical liberalism. So let's start to understand the classical liberalism. So in the classical liberalism, there are two major characteristics that we have to understand. The first is the egoistic individualism. So my dear student, egoistic individualism is what? Basically or principally, as we discuss the liberalism, we have understand that the liberalism has the core idea of an individual, or we can say that the individual is the center part of the liberalism study. So in that sense, the classical liberalism और पारंपरिक उदारवाद जो है वो व्यक्ति को केंद्र मान करके चलता है, जहां पर जो व्यक्ति है व्यक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, it means the self is a core part of the liberalism and the self-interested, self-creature, self-reliance and particularly all those words which associate the self, which associate the interest of an individual, all these create the egoistic individualism. जितनी भी चीजें जो व्यक्ति से जुड़ी हुई है, व्यक्ति के हित के लिए है, वो सभी के सभी इगोइस्टिक इंडिविजुअलिज्म को जन्म देती हैं. इगोइस्टिक इंडिविजुअलिज्म को आप अति व्यक्तिवाद के रूप में भी समझ सकते हैं. Now the second and next characteristic of the classical liberalism is the negative freedom. So my dear student, in our previous video we have discussed the two frame of the freedom, negative and positive freedom. So and also discussed the negative freedom is that freedom where the state cannot intervene. नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जहां राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. But in another sense, the positive freedom is a different form. In the positive freedom, the state can intervene but to reform or to do a justice. If the negative freedom harms others and it become a positive freedom or it become a part of a harm, in that sense only the state can intervene. यदि व्यक्ति जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता में रहते हुए दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है तो उन परिस्थितियों में वो सकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है. तो इसीलिए ये दो प्रकार के फ्रीडम को समझा गया था. और नेगेटिव फ्रीडम जो है क्लासिकल लिबरलिज्म का कोर पार्ट है. तो माय डियर स्टूडेंट, द थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इज दैट द स्टेट इज रिगार्डेड एट बेस्ट एज इन थॉमस पेन्स वर्ड अ नेसेसरी एविल, यानी कि राज्य को एक बुरी शक्ति के रूप में माना गया है. तो क्लासिकल लिबरलिज्म हैज अ कोर आइडिया ओवर द इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया. क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो व्यक्ति पर ही चिन्हित है. तो आइए क्लासिकल लिबरलिज्म के कुछ पार्ट को समझते हैं एक एक करके. द फर्स्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म इज नेचुरल राइट, यानी कि प्राकृतिक अधिकार. तो प्राकृतिक अधिकार जो है इसका एक मुख्य भाग है. फॉर लॉक एंड थॉमस जेफरसन there were two major scholars who have discussed the core idea of a natural right, or we can say that the John Locke is the father of a natural right. So what is the natural right? प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं उसको समझते हैं. देखिए, natural in that they are invested in a human being by nature or a god. Natural right are now more commonly called a human right as well. तो प्राकृतिक अधिकार जो है उसको मानवीय अधिकार भी कहा जाता है. और जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन, इन दोनों ही व्यक्तियों ने क्या कहा है? इन दोनों ने कहा है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है. मनुष्य जो है प्रकृति के द्वारा उसकी संरचना की गई है, तो उससे जुड़े जो अधिकार हैं वो प्रकृति के ही द्वारा दिए गए हैं. व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, उसको प्रकृति के द्वारा वो मिला हुआ है. तो इट मीन्स दैट द राइट टू लाइफ, राइट टू हैप्पीनेस, राइट टू प्रॉपर्टी इज द नेचुरल राइट. दे आर एंटाइटल्ड टू अ ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, and it is entitled by the nature, by the God. That was the core idea of the natural right. In the later period, it became the human rights. In 1948, we all know that United Nations has passed a resolution and to conduct the Human Rights Act.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन अ फर्दर कोर्स। आगे हम इसको समझते हैं। देखिए थॉमस जेफरसन के बारे में समझते हैं। थॉमस जेफरसन की हमने पिक लगा रखी है, आप पिक को देखिएगा। जेफरसन डेवलप्ड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एग्रीगेरियन थॉट, एग्रीगेरियन दैट sought to blend a belief in a rule by a natural aristocracy with a commitment to a limited government and laissez-faire। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब बहुत क्लियर हो गया कि जो थॉमस जेफरसन है वो नेचुरल एरिस्टोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये नेचुरल एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? इसका मतलब प्राकृतिक सत्ता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति की अपनी एक सत्ता मौजूद है और इसीलिए जितने भी सुधार हो रहे हैं वो उन सभी सुधारों को समर्थन करते हैं, सरकार की सीमाओं को बांधते हैं। द गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड, देयर इज अ नेचुरल एरिस्टोक्रेसी एंड दैट शुड बी प्रिवेल, इसी को ही होना चाहिए। और इसी संदर्भ में जितने भी सुधार होते हैं, ये जो एग्रेरियनिज्म लिखा हुआ है यहाँ पर मतलब हुआ जो कृषि से संबंधित सुधार होते हैं उसके बारे में। सभी प्रकार के सुधारों को वो पक्षधर रहे हैं, स्लेवरी का विरोध करते हैं, एजुकेशन को वो बढ़ावा देते हैं। ये है थॉमस जेफरसन। अमेरिका और अमेरिका में जो है आगे चल करके बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूटिलिटेरियनिज्म। जेरेमी बेंथम इसके बहुत बड़े स्कॉलर हैं और ये यूटिलिटी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो नेचुरल राइट होता है, प्राकृतिक अधिकार होता है, ये एक बेकार की चीज है, ये सही नहीं है। इनके हिसाब से क्या होता है? ही प्रपोज द व्हाट ही बिलीव टू बी द मोर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव आइडिया। ही सेज दैट द अर्थ इज बीइंग रिवॉल्व और इज बीइंग रन according to the scientific and objective ideas. As a human being is also a person who needs always happiness or a desire or a pleasure. It means that the human being only to attain happiness, they avoid pain. तो जो व्यक्ति है वो हमेशा खुशी की तलाश करेगा और जो अपने दर्द को नकारेगा। ये कौन कह रहे हैं? जेरेमी बेंथम कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जेरेमी बेंथम, ह्यूमन बीइंग नीड हैप्पीनेस और प्लेजर। Okay, this is the main idea of Jeremy Bentham. It equates good with pleasure or happiness and evil with the pain or unhappiness. Individuals are therefore assumed to act so as to maximize pleasure. और व्यक्ति वही कार्य करेगा जो उसको भला लगेगा, जो उसको अच्छा लगेगा। बुरा कार्य थोड़ी करेगा, वो तो नहीं करेगा ना। तो जो अच्छा कार्य उसको कर रहा है उसको करने दिया जाए, let them do, ठीक है। और वो हर व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा अपने लिए, वो खुश रहेगा तो समाज अच्छा हो जाएगा। तो हर व्यक्ति जो चाहता है उसको करने दिया जाए। तो ये भी क्लासिकल लिबरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का जो मेजर पार्ट रहा है, मैक्सिमम गुड्स फॉर द मैक्सिमम पीपल। इट मींस गवर्नमेंट शुड डू मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल। दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। नाउ वी हैव कम ऑन द इकोनॉमिक लिबरलिज्म। आर्थिक उदारवाद क्या होता है? देखिए आर्थिक उदारवाद जो है वो बाजार की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड डेविड रिकार्डो, दे बोथ हैव स्ट्रेस्ड ओवर द इकोनॉमिक फ्रीडम, कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द फ्री इंडिविजुअल्स। इन हिज बुक द स्मिथ आर्ग्यू द वेल्थ ऑफ नेशंस, स्मिथ सेज दैट he believed that the market operate according to wishes and decision of the free individual। जो मार्केट जो चल रही है, जो बाजार चल रहा है, वो व्यक्ति की इच्छाओं से चलना चाहिए। व्यक्ति को सामान खरीदने की आजादी होनी चाहिए। व्यक्ति जो चाहता है उसको डिमांड करनी चाहिए, बाजार उसको सामान मुहैया कराए और सरकार का कोई दखल ना हो। सरकार दखल देगी तो बाजार काम नहीं कर पाएगा। इसी संदर्भ में ही आर्ग्यू अबाउट द इनविजिबल हैंड थ्योरी। व्हाट इज द इनविजिबल हैंड थ्योरी? ही सेज दैट according to the market principle, their kind of all types of economic malign practices can be easily dealt. What does it mean? It means that, for instance, unemployment यानी कि बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर? ऐसा सच में हुआ नहीं है, लेकिन ये अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं। ये क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन देयर आर मोर पीपल प्रिपेयर्ड टू वर्क देन देयर आर जॉब्स अवेलेबल। यानी कि बेरोजगारी क्यों होती है? बेरोजगारी इसलिए होती है कि काम की संख्या कम है और काम लेने वालों की संख्या ज्यादा है। वो ये कहते हैं कि अगर काम लेने वालों की ज्यादा संख्या है, काम की कम है, इससे क्या होगा? जो मजदूरी है वो कम हो जाएगी, जो लेबर प्राइस है वो कम हो जाएगा। लेबर प्राइस कम हो जाएगा तो फिर जो मालिक होगा वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर कर लेगा और सबको काम मिल जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सी थ्योरी देते हैं इनविजिबल हैंड की, जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर देती है। The high point of a free market belief was reached with the doctrine of laissez-faire। इसके बाद जो सिद्धांत निकल करके आता है उसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ laissez-faire। It means that let them act, यानी कि व्यक्ति को काम करने दिया जाए, यानी कि सरकार जो है अपना इंटरफेयर नहीं करे। यही मतलब होता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। Laissez-faire idea upon all form of factory legislation, including the restriction upon the employment of children,
limits to the number of hours worked and any regulation of working condition। किसी भी प्रकार की पाबंदी जो मजदूरों पर लगाई जाए या फैक्ट्रियों के ऊपर लगाई जाए, उन सभी प्रकार की परिस्थितियों का लेजिस्लेचर के द्वारा विरोध किया जाता है। लेजिस्लेचर प्रिंसिपल इज अ very fundamental principle of the market economy. This is the also core idea of the economic liberalism. Now let's come on the social Darwinism। ये Darwinism की अपनी एक थ्योरी है। ये क्या कहते हैं, ये बेसिकली सोशियोलॉजिकल के थिंकर, सोसाइटी समाज को पढ़ने वाले विचारक हैं। इनकी से पहले एक बुक आती है सैमुअल स्माइल्स की बुक सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प के जरिए ये समझाने की कोशिश की जाती है कि व्यक्तियों की मदद नहीं की जानी चाहिए, Heaven helps those who help themselves। और ये आर्गुमेंट दिया जाता है, इट मीन्स ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद कर सकते हैं, और जो स्वयं की मदद नहीं कर सकते उसको क्या करें, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप जी लेगा। डार्विनिज्म एक बहुत ही फेमस थिंकर है और इनके विचारों को कई जगह प्रपोज किया गया है। मल्टीपल आइडियाज हैज बीन डिस्कस्ड अंडर द डार्विन थ्योरी। व्हाट द डार्विन सेज दैट डार्विन इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल थिंकर। ये कोई पॉलिटिकल साइंस के थिंकर नहीं है, ये बायोलॉजी के थिंकर है। समाज को उन्होंने समझा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी बुक रही है और अपनी बुक में कहते हैं कि जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां प्रकृति के दायरे में रह करके जीती हैं, और जो प्रजाति नहीं जी सकती वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट दोज पर्सन हु कैन नॉट सर्वाइव अंडर द नेचुरल फिनोमिना इट शैल बी पैनिश्ड। यानी कि जो व्यक्ति जी नहीं सकता है उसको मर जाना चाहिए, ये डार्विनिज्म कह रहे हैं। इसके अंदर स्टेट को उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। देखिए ये बहुत खतरनाक थ्योरी है, पर ये थ्योरी दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि सरकार फ्री एजुकेशन क्यों दे, सरकार फ्री हॉस्पिटल क्यों दे, जिसके पास पैसा है वो जिए, जिसके पास नहीं है वो मर जाए, ये तो प्रकृति का नियम है। तो डार्विनिज्म जो है अपनी थ्योरी में इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, और इसी विचार को आगे चल करके एक थ्योरी निकल करके आती है, उसे बोलते हैं ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव। यानी कि जो फिट है वो सर्वाइव करे, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं करे, उसको मर जाना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये कौन समझा रहा है, ये चार्ल्स डार्विन समझा रहे हैं। ये बहुत बड़े विचारक हुए हैं एक टाइम के, उसके बाद इसका विरोध भी किया गया है, वो अलग बात है। नाउ लेट्स कम ऑन द न्यू लिबरलिज्म। देखिए चार्ल्स डार्विन भी जो है क्लासिकल लिबरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। Now let's come on the new liberalism, and under the new liberalism, obviously the new liberalism is a counter. It's a counter of that phenomena where the state try to intervene. तो राज्य जहां ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था बीच के कुछ दौर में, उसके बाद दोबारा से पुराने ही विचारों को उभारा गया जिसको न्यू लिबरलिज्म कहा गया। और अंडर दैट लिबरलिज्म द मार्केट शुड बी स्ट्रेस्ड मोर rather than the big government and state intervention। जहां पर राज्यों के दखलंदाजी का अधिक विरोध किया गया, मार्केट पर ज्यादा फोकस किया गया, इसी को ही न्यू लिबरलिज्म आइडिया कहा गया, जो 1970s के बाद 80s के बाद बहुत तेजी से उभर करके सामने आया है। कई देशों ने जो है लिबरल इकोनॉमी को अपनाया है। इसी के साथ ही न्यू लिबरलिज्म कवर होता है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म को हमने समझा है। वी हैव डिस्कस्ड द मल्टीपल कंपोनेंट ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म, एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक एंड शेयर अवर वीडियो, how we can discuss the further videos, further ideas of a liberalism, further idea of ideology of political science that allies with the political science. Thank you so much for the listening. Like and share our video. Thank you so much.